Hello everyone. So let us discuss the annual examination of Delhi Public School Chandigarh that was held on 5th March. So here are some instruction. So the first instruction is all questions are compulsory. Second is section A carries 8 marks, 1 mark for each part. Section B consists of 9 questions of 2 marks each. Section C consists of 8 questions of 3 marks each. Section D consists of 5 questions of 4 marks. And section E consists of 2 questions of 5 marks each. So let us start. So here the section A, the first question is choose the correct option for the following. So the first question is the perimeter of regular pentagon is of side 6 meter. So हमें perimeter find करना है. हमें यहाँ पे पेंटागन की साइड दी हुई है दैट इज 6 मीटर राइट. ओके तो साइड है 6 मीटर. ओके तो इसका पेरीमीटर क्या होगा. अब रेगुलर पेंटागन है, इसकी साइड्स क्या होगी 5, तो इसका पेरीमीटर होगा 5 इंटू साइड, तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 6 विच इज 30 मीटर. नाउ here the option D is correct. Now the second question is the equation for 2 more than 5 times a number equals to 22. सबसे पहले इसको देखते हैं 5 times a number. अब नंबर हमें नहीं पता, so let us suppose it x. So this is the first question, this was second. So number is x. अब 5 times a number means 5x. And 2 more than, this means 5x plus 2 which is equals to 22. So here the equation is 5x plus 2 equals to 22 which is option B. Now third question is 5 kilometer 8 meter in kilometer. Okay, तो हमारे पास है 5 किलोमीटर and 8 meters. अब यहाँ पे 5 किलोमीटर तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, हमने इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 0.008. तो ये दोनों क्या आ जाएंगे 5.008 किलोमीटर विच इज ऑप्शन बी. नाउ fourth question, the Jasmeet ate 3 out of 8 pieces of pizza, then the fraction of pizza left is. Okay, so pizza की total parts कितने थे 8. So Jasmeet ate how many parts, 3 parts. This means 3 by 8 fraction that was eaten. अब then the fraction of pizza left. अब total थे 8 parts, उसमें से Jasmeet ate 3 parts. अब कितने parts बचे होंगे 5. This means which fraction, that is 5 by 8 which is option B. So next move करते हैं filling the blanks. So here the fifth blank is the predecessor of -5 is. तो इसको हम नंबर लाइन से देखते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. और हमने देखना है प्रीडिसेसर ऑफ -5. अब इसका प्रीडिसेसर क्या होगा -6. दैट इज दिस इज द आंसर. नाउ 6 इज if this symbol represent 5 eggs then the number of symbol to be drawn to represent 40 eggs are. अब जो एक सिंबल है वो 5 एग्स को रिप्रेजेंट करता है. अगर हमारे पास 40 एग्स है तो उसके लिए हम कितने सिंबल यूज करेंगे, कितने करेंगे 40/5 दैट इज इक्वल टू 8 सिंबल. सो हियर द आंसर इज 8. नाउ नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, द स्कोर ऑफ रेनू इन इंग्लिश. कितने स्कोर है 10 more than 2/3 of her score in science. अब साइंस में कितने स्कोर है, she scored x marks in science. Then the algebraic expression for her score in English. Okay, अब इंग्लिश में कितने स्कोर बोला उन्होंने 10 more than 2/3 of her score in science. 2/3 of her science मतलब 2/3. अब साइंस में कितने मार्क्स है उसके x, राइट. इज 10 more than this मतलब 2x, 2/3x plus 10. So answer आ गया 2/3x plus 10. Now 8th is if in a school there are 500 students and 20 teachers then the ratio of number of teachers to the number of student is. तो हमने ratio find करनी है number of teachers to the number of students. अब teachers है हमारे पास 20 and the students are 500. तो इसकी ratio find कर लेते हैं in the lowest form. So 0 से 0 cancel, 2 1s are 2, 2 25s are 50. So ratio आ गई 1:50.
25. यहाँ पे लिख लेते हैं 1:25. So next move to the next question. Here section B, second part, second question. Summer and Sabrina participate in lemon spoon race. The following table shows the instruction and the rules. तो instruction है, for every time lemon falls off the spoon, deduction of 2 points. For finishing first, awarded 9 points. For finishing second, awarded 6 points. Okay. So here Sabrina has finished first in the race but was not been able to manage her balance. Hence 3 times lemon fell off the spoon. Summer has finished second in the race but managed his balance better. Hence lemon fell off once only. Summer and Sabrina both feel that they are the winners. State who is the winner. Give reason to support your answer. तो सबसे पहले Sabrina की बात करते हैं. Okay. So Sabrina has finished first. मतलब वो first आई है रेस में, तो उसको कितने points मिलेंगे? 9 points. Okay, 9. But was not able to manage her balance, hence 3 times lemon fell off the spoon. अब यहाँ पे उसने क्या बोला? For every time lemon falls off the spoon, deduction of 2 points. मतलब हर एक बार अगर lemon गिरा तो कितने point deduct हो जाएंगे? 2 points. लेकिन उसके कितनी बार lemon गिरा? 3 बार. इसका मतलब उसके कितने points lose होंगे? That is 2 into 3, that is 6 points. तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, तो उसको कितने points मिलेंगे? 3 points. Correct. Now समर की बात करते हैं. समर हैज फिनिश सेकंड इन द रेस. तो समर यहाँ पे सेकंड आया है, तो उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 6 पॉइंट्स. करेक्ट, राइट. तो नेक्स्ट बोला है हेंस लेमन फेल ऑफ ओनली वंस. अब यहाँ पे क्या बोला है कि एवरी टाइम लेमन फेल्स ऑफ, डिडक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स. अब उसके स्पून से लेमन कितनी बार गिना? एक बार. तो कितने पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे उसके? 2 पॉइंट्स. तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, दैट इज 4 पॉइंट्स. राइट. अब सिब्रीना के कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स. और समर के 4 पॉइंट्स. किसके ज्यादा पॉइंट्स हैं? समर के. दिस मीन समर इज द विनर. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड. राइट दिस इन द प्रोडक्ट फॉर्म, ऑल्सो राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द आंसर. ओके, तो यहाँ पे है 12, a रेज टू पावर 2, b रेज टू पावर 3, c रेज टू पावर 2. अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 2 इंटू 2, 4 इंटू 3, दैट इज 12 इंटू a रेज टू पावर 2 मतलब a इंटू a इंटू b रेज टू पावर 3 मतलब b इंटू b इंटू b एंड c रेज टू पावर 2 मतलब c इंटू c. So this is in the product form. Now numerical coefficient, इसका numerical coefficient क्या होगा? That is 12. So coefficient क्या आ गया इसका? That is 12. Next question. Construct an angle of 150 using ruler and a pair of compass. Okay, तो हमने 150 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, राइट? तो सबसे पहले तो हम इसका बेस ड्रॉ करेंगे. अब 150 का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये किन दो एंगल्स के बीच में आता है. यस, किन दो एंगल्स के बीच में आएगा? ये 120 एंड 180 डिग्री. इसका मतलब मुझे 120 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, राइट? अब 120 का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? ये क्या होता है? 60 का डबल. तो 60 का डबल ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हम कंपास ओपन करेंगे और फैनी रेडियस और टिप रखेंगे हम इस पॉइंट पे और एक आर्क लगाएंगे, राइट? नाउ विद द सेम रेडियस टिप रखेंगे इस पॉइंट पे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे. अब ये तो हमारे पास आ गया 60 का. अब हमें 120 चाहिए, तो विद द सेम रेडियस टिप रखेंगे हम इस पॉइंट पे और अनदर आर्क. तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 120 डिग्री का एंगल, राइट? अब हमने ड्रॉ करना है 150 डिग्री का एंगल, राइट? अब 180 डिग्री एंगल कैसे मिलेगा? ये तो एक स्ट्रेट लाइन है. ये पूरा यहाँ से अगर मैं यहाँ तक देखूं, दिस इज 180 डिग्री, करेक्ट? तो अब मुझे मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक. तो हम क्या करेंगे? कंपास ओपन करेंगे और फैनी रेडियस टिप रखेंगे इस पॉइंट पे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे. नाउ विद द सेम रेडियस टिप रखेंगे इस पॉइंट पे अनदर आर्क. तो इसको वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देंगे. सो
तो यहां से लेके ये जो हमारे पास एंगल बना, दिस एंगल इज ऑफ 150 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. A car travels 180 kilometers in 3 hours. How far will it travel in 7 hours? Okay, तो यहाँ पे कार है वो 3 hours में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? That is 180 किलोमीटर्स. और हमने देखना है कि 7 hours में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 3 hours. That is 180 किलोमीटर. अब मुझे 7 आवर्स का देखना है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. राइट, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर कितना किया होगा? 180 अपॉन 3. करेक्ट, दिस किलोमीटर. नाउ अब मुझे देखना है 7 आवर्स में, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 आवर्स. अब इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 60. सो दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 420 किलोमीटर. सो डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 आवर्स इज 420 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर. अब हमने सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है. हमें क्या पता है? डायमीटर पता है. अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता क्या है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर. तो मतलब मुझे पहले यहाँ पे आर चाहिए. आर मीन्स रेडियस. अब डायमीटर पता है, दैट इज 42 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या आ जाएगा? इसका हाफ विच इज 42 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. नाउ सर्कमफ्रेंस आ जाएगा यहां से 2 इंटू पाई कितना है? 22 अपॉन 7 इंटू आर दैट इज 21. तो 7 1 7, 7 3 21. तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 132 सेंटीमीटर. Next is 7th question. The following pictograph shows the marks of Rakul in various subjects. अब सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, उसके मार्क्स यहाँ पे सिंबल्स में दिए हुए हैं. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि दिस सिंबल 10 मार्क्स के इक्वल है और ये वाला सिंबल 5 मार्क्स के इक्वल. राइट, तो फर्स्ट इस पे ए पार्ट है. रकुल्स पेरेंट डिसाइडेड टू गिव 100 पर सब्जेक्ट एज एप्रिसिएशन फॉर मार्क्स अबव 38 इन a subject. What amount did she get in all? Okay, तो हमने देखना है कि उसको टोटल अमाउंट कितनी मिली होगी. तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसके हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं. राइट, चलिए तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं. मैथ्स में यहाँ पे कितने सिंबल यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5 और सारे सिंबल सेम है, ये वाले सिंबल्स. तो यहाँ पे एक सिंबल के कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स. तो 5 सिंबल से कितने होंगे? 50 मार्क्स. करेक्ट. नाउ इंग्लिश में देखते हैं उसके 1 2 3 4 सिंबल्स हैं, तो कितने मार्क्स होंगे उसके? 4 इंटू 10 40 मार्क्स. नेक्स्ट साइंस में देखते हैं, यहाँ पे 2 सिंबल्स तो कंप्लीट हैं, इसके कितने मार्क्स होंगे? 2 सिंबल्स के लिए एक सिंबल के 10 मार्क्स हैं, 2 के कितने होंगे? 20 प्लस. तो यहाँ पे इस सिंबल के कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स. तो 20 प्लस 5 दैट इज 25 मार्क्स. नाउ सोशल स्टडीज, इन तीनों के लिए कितने मार्क्स होंगे? 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30 और इसके लिए 5 मार्क्स, तो ये आ जाएगा 35 मार्क्स. करेक्ट. अब उन्होंने क्या बोला था कि अगर उसके सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट है उसके अगर 38 से अबव मार्क्स आते हैं तो उसको 100 रुपीज मिलेंगे. अब उसके कितने सब्जेक्ट्स में 38 से अबव है? ये भी 38 से अबव है, ये भी 38 से अबव है. राइट, 2 सब्जेक्ट्स में, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू, उसको प्राइस जो अमाउंट मिलेगी दैट इज 200 रुपीज. राइट. नेक्स्ट इज बी पार्ट. इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द लोएस्ट? कौन से सब्जेक्ट में उसने लोएस्ट स्कोर किया है, जिसके मार्क्स कम होंगे? कौन सा सब्जेक्ट है? दैट इज साइंस. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी मार्क्स डिड शी गेट इन दैट सब्जेक्ट? कितने मार्क्स आए उसके? 25 marks. So this is the answer. Next is 8th question. Find the sum of place value of 7 in this. Okay, तो नंबर है 679.057. तो सबसे पहले हम इस 7 की प्लेस वैल्यू लिखते हैं. दिस इज 679. क्या आई प्लेस वैल्यू? 70.
इसकी क्या प्लेस वैल्यू आएगी? अब देखो ये कौन सी प्लेस पे है? थाउजेंड्स प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 7/1000, तो ये आ जाएगा 0.007। अब हमने क्या फाइंड करना है? इसका सम, 70 प्लस दिस, सो 70 प्लस 0.007 किसके इक्वल आ जाएगा? 70.007। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन। Rajiv attempted 40 questions in all, out of which 25 were correct. What fraction of questions were incorrect? Write one equivalent fraction of the answer with the numerator 24. Okay, तो हमने फ्रैक्शन किसकी फाइंड करनी है? द क्वेश्चंस वर इनकरेक्ट। हमें यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस पता है और उसके करेक्ट जो आंसर जो क्वेश्चंस है वो हमें पता है, तो यहाँ से हम इनकरेक्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल। सो टोटल क्वेश्चंस कितने उसके? दैट इज 40। करेक्ट कितने हैं? करेक्ट क्वेश्चंस दैट इज 25। तो इनकरेक्ट कितने होंगे? 40 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 15। अब हमने फ्रैक्शन निकालनी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चंस वर इनकरेक्ट? टोटल क्वेश्चंस थे 40, उसमें से इनकरेक्ट कितने हैं? 15। सो फ्रैक्शन आ गई 15/40। नाउ नेक्स्ट बोला है राइट वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द आंसर विद द न्यूमरेटर 24। अब हमारे पास है फ्रैक्शन 15/40। अब मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसके न्यूमरेटर में आए 24। अगर मैं इसके कुछ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो तो बड़ा हो जाएगा, मतलब मुझे पहले इसमें से कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर दूं, दिस विल बी 3/8। तो फ्रैक्शन आ गई 3/8। अब मुझे न्यूमरेटर चाहिए 24, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करें इसको? 3 से, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई 9/24। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। वेरीफाई दैट y is equal to 6 is the root of the equation this। तो हमारे पास इक्वेशन है 2y minus 3 is equal to 9। तो हमने देखना है कि क्या y is equal to 6 इसका रूट है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये 9 के इक्वल आता है या नहीं। सो 2 into y that is 2 into 6 minus 3। 2 into 6 is 12 minus 3 that is equal to 9, which is equal to right hand side. This means y is equal to 6 is its solution. Next is 11th question. Tamanna, Adil and Sartaj are viewing a cricket match at home. They made few predictions. Okay. Tamanna made 5 incorrect prediction. Adil made 3 incorrect and Sartaj made 2 incorrect predictions. Their dinner bill amount to ₹1500. The bill must be split in such a way that the viewer with the most incorrect predictions has to pay the maximum. This is decided to contribute towards the bill in the ratio of the number of incorrect prediction made by each one of them. So calculate the amount contributed by each one of them. ओके तो यहाँ पे जो क्रिकेट मैच देख रहे हैं 3 पर्सन, तमन्ना, आदिल एंड सरताज, उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की हैं। तो यहाँ पे तमन्ना की 5 इनकरेक्ट है प्रेडिक्शंस, आदिल की 3 एंड सरताज की 2। तो जिसने ज़्यादा गलत प्रेडिक्शन की उसको सबसे ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा, राइट। तो टोटल अमाउंट हमें पता है दैट इज 1500। अब बिल कैसे, जो कंट्रीब्यूशन होगी कैसे पे होगी? इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इनकरेक्ट प्रेडिक्शन। अब तमन्ना की 5 है, आदिल की 3 एंड इसकी 2, तो रेशो क्या आ जाएगी? 5:3:2। और टोटल बिल कितना है? 1500। सो टोटल अमाउंट टू बी पेड दैट इज ₹1500। अब हमें ये देखना है कि तमन्ना कितना पे करेगी, राइट। तो तमन्ना, अगर हम तमन्ना की बात करें, तमन्ना पेड, ओके तो यहाँ पे तमन्ना ने पे करना है 5 पार्ट्स, राइट। और नेक्स्ट इज आदिल ने पे करना है 3 पार्ट्स एंड सरताज ने 2 पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स देख लें कितने हैं, 5 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 10 पार्ट्स। इसका मतलब तमन्ना कितना पे करेगी? टोटल पार्ट्स है 10, उसमें से उसने कितना पे करना है? 5 पार्ट्स। अब 5/10 है किसका? टोटल मनी का। दिस मीन्स 1500, करेक्ट। दिस मीन्स इसको हम कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा ₹750।
तो ये तो आ गया तमन्ना ने जितना पे करना है. नेक्स्ट इज आदिल. अब आदिल कितना पे करेगा? 3 पार्ट्स, 3 आउट ऑफ 10, 3 ऑफ 10 ऑफ 1500. तो इसको जब कैंसिल करेंगे आ जाएगा 450 के इक्वल. इसका मतलब आदिल कितना पे करेगा? 450 रुपीज. नाउ नेक्स्ट लास्ट इज सरताज. अब सरताज ने कितना पे करना है? सरताज पेड 2 आउट ऑफ 10. 2 by 10 किसका? 1500 का. तो वो पे करेगा दैट इज रुपीज 300. राइट? सो दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 3 persons. Next is 12th question. Construct an angle of 75 degree using ruler and a pair of compass. Label it. Okay, तो 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो सेम इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल किन दो एंगल्स के बीच में आता है. यस, किसके एंगल के बीच में आता है? ये 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो मतलब मुझे 60 और 90 का एंगल चाहिए. तो ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले इसका बेस ड्रॉ करते हैं. राइट? और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले. तो कंपास ओपन करेंगे ऑफ एनी रेडियस और टिप रखेंगे हम इस पॉइंट पे और एक आर्क लगाएंगे. नाउ विद द सेम रेडियस टिप रखेंगे इस पॉइंट पे, अनदर आर्क यहाँ पे. अब 90 का एंगल कैसे बनेगा? ये तो हमारे पास बन गया 60 डिग्री का एंगल. अब 90 का कैसे बनेगा? 90 कैसे बनता है? 60 एंड 120 के बीच में जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करके. अब हमने 60 का एंगल बनाया है तो इसका डबल टिप रखेंगे यहाँ पे, अनदर आर्क. तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 का एंगल. तो अब 90 का एंगल चाहिए, तो मतलब मुझे इस एंगल को बाइसेक्ट करना है. तो कोई भी रेडियस से कंपास ओपन करेंगे, टिप रखेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे आर्क लगाएंगे. अब विद द सेम रेडियस टिप रखेंगे इस पॉइंट पे, अनदर आर्क. तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री एंगल. अब हमें चाहिए 75 डिग्री का एंगल. तो वो कहाँ पे होगा? इस एंगल को बाइसेक्ट करके. अब अगेन कंपास ओपन करेंगे ऑफ एनी रेडियस, टिप रखेंगे इस पॉइंट पे और एक आर्क लगाएंगे. विद द सेम रेडियस टिप रखेंगे इस पॉइंट पे, अनदर आर्क. तो इसको हम वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देंगे दिस. सो यहां से ये जो हमें एंगल मिला, दिस इज ऑफ 75 डिग्री. तो इसको लेबल करना है. यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज वर्टेक्स ओ एंड दिस इज पॉइंट बी. सो एंगल AOB that is equal to 75 डिग्री. नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारे पास इनका हमें सम दिया हुआ, इसको सिंप्लीफाई करना है. सो दैट इज 3A minus 2B plus 8C minus 5C plus 4B minus 6A minus 2B plus 2A minus 2C. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो A वाली टर्म्स है उनको ऐड करते हैं. 3A minus 6A plus 2A. इन तीनों का सम करने पे हमारे पास आ जाएगा minus A. अब B वाली टर्म्स को ऐड करते हैं. minus 2B plus 4B and minus 2B. इनको ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा 0 plus 0B. अब आते हैं C वाली टर्म्स पे. 8C minus 5C एंड माइनस 2C. इनको ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 5C. तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस A प्लस माइनस 5C. सो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आया. नेक्स्ट उन्होंने पूछा है फाइंड वेदर द आंसर इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. तो इसमें देखते हैं कितने टर्म्स हैं. कितने टर्म्स हैं? 1 एंड 2, 2 टर्म्स. तो कौन सी ये पॉलिनोमियल है? दैट इज बाइनोमियल. 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल. नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. तो हमने इस फिगर का एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो इसको हमने रेक्टेंगल में स्प्लिट करना पड़ेगा. राइट? तो रेक्टेंगल में स्प्लिट कर देते हैं इसको. या तो आप इसको वर्टिकली कर सकते हो या इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो. तो मैं इसको वर्टिकली कर रही हूँ ऐसे. तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रेक्टेंगल. दिस इज द सेकंड रेक्टेंगल. ओके, तो अगर मैं लेंथ की बात करूं फर्स्ट रेक्टेंगल की, इसकी लेंथ क्या है? यहां से लेके ये कितनी आ गई लेंथ? 10 सेंटीमीटर. और विड्थ कितनी आ गई इसकी? दिस, दैट इज 1 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या आ जाएगा? 10 into 1 means length into breadth, that is equal to 10 square centimeter. Now second rectangle. तो यहां पे इसकी लेंथ क्या है? This, that is 8. लेंथ इट 8 सेंटीमीटर. एंड विड्थ कितनी है? दैट इज 2 सेंटीमीटर.
तो एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 2 दैट इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना था, तो दोनों एरियाज को क्या कर देंगे हम ऐड, तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा 10 plus 16 that is equal to 26 square centimeter. So this is the area. Next 15th question. Arrange the fraction this in descending order. तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे पहले तो इसका मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लाइक फ्रैक्शन को इजीली डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो इसका हम पहले एलसीएम लेते हैं। तो फ्रैक्शंस हमारे पास है 1/3, 5/6, 4/9 एंड 7/12। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 36, मतलब मुझे इनका डिनोमिनेटर क्या चाहिए 36। तो फर्स्ट 1/3 डिनोमिनेटर चाहिए 36, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से इंटू 12, तो ये आ जाएगा 12/36। नेक्स्ट इज 5/6, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ये आ जाएगा 30/36। नेक्स्ट इज 4/9, किसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दिस इज 14/36, सॉरी 16/36। नेक्स्ट इज 7/12 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21/36। तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि विच इज द ग्रेटेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले कौन सी फ्रैक्शन आ जाएगी, दैट इज 30/36। इसके बाद जिससे स्मॉलेस्ट है दैट इज 21/36। नेक्स्ट इज 16/36 एंड द लास्ट वन इज 12/36। सो दीज आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम ओरिजिनल फ्रैक्शंस में भी लिख लेते हैं। तो 30/36 मीन्स 5/6, 21/36 इज 7/12, 16/36 इज 4/9 and 12/36 is 1/3. So this is the answer. Next 16th question. Meera bought fruits weighing 25 kg and 5 grams. Out of this 12 kg 400 grams are oranges and 10 kg 550 grams are apples and the rest are guavas. What is the weight of guavas in decimal? तो हमें टोटल वेट पता है कि सारे फ्रूट्स का कितना है दिस, और हमें ऑरेंजेस का भी वेट पता है, उसमें हमें एप्पल्स का भी वेट पता है, तो हमने गुआवास का वेट फाइंड करना है, राइट। ओके, सो टोटल वेट हमारे पास कितना है, दैट इज 25 kg एंड 5 ग्राम। तो इसको हम केजी में चेंज कर लेते हैं, मतलब किलोग्राम्स में, तो ये आ जाएगा 25.005 किलोग्राम, करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वेट ऑफ ऑरेंजेस, दैट इज 12 किलोग्राम एंड 400 ग्राम, ये आ जाएगा 12.400 किलोग्राम। नेक्स्ट वेट ऑफ एप्पल्स, दैट इज 10 किलोग्राम एंड 550 ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम्स, सो ये आ जाएगा 10.550 किलोग्राम्स। नाउ अब मुझे चाहिए गुआवा का वेट। पहले हम ये देख लें कि इन दोनों का टोटल वेट कितना आ रहा है। सो टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, दैट इज 12.400 प्लस 10.550, तो इनको ऐड करने पे आ जाता है हमारे पास 22.950 किलोग्राम। अब मुझे देखो टोटल वेट तो पता है तीनों फ्रूट्स का, उसमें से मुझे ऑरेंज एंड एप्पल्स का भी वेट पता है, तो बाकी का वेट किसका होगा, गुआवा का। तो वेट ऑफ गुआवा कितना हो जाएगा, टोटल वेट में से ये वाला वेट माइनस कर देंगे। सो वेट ऑफ गुआवास दैट इज इक्वल टू 25.005 minus 22.950 and this will be equal to 2.055 kg. So this is the answer. Next 17th question. Using the number line write the integer which is 4 more than -5. तो सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, so इस तरफ 1, 2, 3 and 4। ओके,
सो विच इज 4 मोर देन -5, -5 से 4 मोर, तो सबसे पहले -5 को रिप्रेजेंट करते हैं, हेयर -5 इज 4 मोर है, मतलब 4 ज्यादा है, तो किस तरफ मूव करेंगे, टू द राइट. हाउ मेनी स्टेप्स, 4 स्टेप्स. सो 1 2 3 एंड 4. सो आंसर क्या आ गया हमारे पास, -1. नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड वेरीफाई द आंसर. तो इक्वेशन है 2x by 7 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है. सो x फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले जो भी इसके साथ है उसको हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे. तो 7 को जो ट्रांसपोज करते हैं, इधर डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2x किसके इक्वल आ गया, 28. सो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रांसपोज करके डिवीजन में आ जाएगा. तो x कितना आ गया, 28/2, दैट इज इक्वल टू 14. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14. तो उसके बाद उसने बोला है वेरीफाई द आंसर. इसका मतलब मुझे इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, राइट, वेदर इट इज इक्वल टू 4 और नॉट. तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 2 × 14/7. तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14. 2 × 2 is 4, which is equal to right hand side. This means this is the correct solution. Next 19th question. Anvi, Sanvi, Saira, Tanush and Rudransh play a board game. For every round of question asked, the host will note down the name of the player who has answered the question correctly and also is the quickest of all. In the end, the player with maximum count will be given an extra question as an incentive. The following names were noted as the winner in various rounds. Anvi, Sanvi, तो यहाँ पे सबके names दिए हुए हैं of every rounds के winner. तो इस पे first है prepare a frequency distribution table of the result. Okay, तो table बनाते हैं इसके लिए. Alright. तो सबसे पहले हम इनके नेम्स लिख लेते हैं, कौन कौन से कंटेस्टेंट थे. सो फर्स्ट इज अनवी, नेक्स्ट इज सानवी, देन रुद्रांश, देन तनिष, देन सायरा, राइट. और नेक्स्ट हम यहां पे इसके लगा लेंगे टैली मार्क्स. ओके, तो काउंट करते हैं. सबसे पहले है अनवी, अनवी के आगे हम एक टैली मार्क लगा देंगे. नेक्स्ट इज सानवी, सानवी के आगे. नेक्स्ट रुद्रांश, रुद्रांश के आगे. नेक्स्ट इज सानवी, सानवी के आगे टैली मार्क. नेक्स्ट इज तनुष, ओके इट्स तनुष. नेक्स्ट इज सानवी. नेक्स्ट इज अनवी. नेक्स्ट अगेन सानवी. नेक्स्ट सानवी. अब देखो सानवी का 5 का ग्रुप कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम इस वे में रिप्रेजेंट कर देंगे. नेक्स्ट तनुष. नेक्स्ट इज रुद्रांश. नेक्स्ट सायरा. नेक्स्ट तनुष. नेक्स्ट सानवी. नेक्स्ट अनवी, अनवी. नेक्स्ट सायरा. नेक्स्ट अनवी. नेक्स्ट तनुष. नेक्स्ट अनवी. तो अनवी का भी कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट लास्ट इज रुद्रांश. ओके, तो अब हम इसका बनाते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट. तो कितने कितने मतलब राउंड्स में विनर है. तो अनवी कितने राउंड्स में विनर हुई, 5 राउंड्स में. दिस इज 6, दिस इज 3, तनुष 4 एंड सायरा 2. करेक्ट. So this is the frequency distribution table of the game. Now B part is who qualify for the extra question, give reason to support your answer. Who qualify for the extra question? अब जिसके सबसे मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चंस होंगे. किसके करेक्ट हैं, देखो सबसे स्कोर किसका है, सानवी का, उसने 6 करेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर इंसेंटिव, राइट. सो आंसर इज Sanvi. This is B part and this was the A part, right. Next 20th question. Are the ratios 45 centimeter 1 meter and rupees 18 ratio rupees 40 in proportion?
इफ यस देन राइट डाउन द मीन टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स। तो प्रपोर्शन में देखने के लिए सबसे पहले हमें इनके रेशोज चेक करनी पड़ेगी, क्या इनकी रेशो सेम आ रही है या नहीं। ओके तो ये हमारे पास है 45 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। ओके तो सबसे पहले तो इनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 45 अपॉन 100 और इसको कैंसिल करने पे हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन 20 एंड द रेशियो इज 9:20। नेक्स्ट इज 18 अपॉन 40। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 20। सो रेशियो भी आ गई हमारे पास 9:20। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गई सेम। दिस मीन्स दीज आर इन proportion. Next is then write down the mean terms and extreme term. Yes, तो proportion में लिखते हैं इसको 5 सेंटीमीटर is to 1 मीटर as 18 rupees is to rupees 40. तो इसमें mean term कौन सी होंगी? This middle term. mean term कौन सी होगी? 1 मीटर and rupees 18. So extreme terms क्या हो जाएगी? दिस एंड दिस 45 सेंटीमीटर एंड रुपीज 40. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट 21st क्वेश्चन. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ऑल्सो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम द आंसर. ओके तो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 7x वाई. अब हमने इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके नीचे लिखेंगे बिल्कुल लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म. अब माइनस 8x स्क्वायर वाई कहां पे आएगा? इसके नीचे. उसके बाद माइनस 4x स्क्वायर वाई 4x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई. अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे ये साइन क्या हो जाएंगे? चेंज. तो माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये भी प्लस में, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब 3x स्क्वायर वाई प्लस 8x स्क्वायर वाई, अब हम ये वाला साइन देखेंगे, ये कितना आ जाएगा? 11x स्क्वायर वाई. नेक्स्ट माइनस 4x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो रहा है, ये कितना आ जाएगा? 0x वाई स्क्वायर. नेक्स्ट 7x वाई माइनस 3x वाई दैट इज इक्वल टू प्लस 4x वाई. तो हमारे पास ये आंसर आ गया. नाउ हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है तो x स्क्वायर कौन सी टर्म में आ रहा है? इस टर्म में. सो x 11x स्क्वायर y, इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? जो भी इसके साथ है दैट इज इट्स कोफिशिएंट. सो कोफिशिएंट आ गया 11y. सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन. Jashan took 1/4 of an hour to paint a picture. Niba finished her painting in 3/5 of an hour. Who took less time and by how much? Okay, तो जशन ने कितना टाइम लिया है? जशन took time to paint. That is 1/4 of an hour, मतलब 1/4 of an hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, मतलब 1/4 of 60. तो कितना टाइम लिया उसने? 4 1 जा 4, 4 15 जा 60. That is equal to 15 minutes. Now next is Nibha took time to paint. कितना टाइम लिया? 3/5 hours. 3/5 of 60. So ये आ जाएगा 12. So 3 into 12 is 36 minutes. करेक्ट. सो यहां पे था who took less and by how much. who took less time, जिसका कम है दैट इज जशन took less time and by how much? 36 minus 15 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 21 मिनट्स. तो उसने कितना कम टाइम लिया? 21 मिनट्स. नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन. अ वुडन टाइल measure 20 centimeter into 25 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size this? Okay, तो हमें यहाँ पे वुडन टाइल है जो उसकी डायमेंशन दी हुई है. सो लेंथ ऑफ टाइल दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. विड्थ इज 25 सेंटीमीटर. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हमें क्या दिया हुआ कि जिस वॉल पे ऊपर वुडन टाइल्स लगनी है उसकी भी हमें डायमेंशन दी हुई है. तो सपोज दिस इज अ वॉल, इसके ऊपर लगेगी.
अब इसका मतलब जितनी भी यहाँ पे टाइल्स लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक टाइल का डायमेंशन दी हुई, जितनी भी इस टाइल यहाँ पे लगेंगी उन सबका एरिया किसके इक्वल होगा? जो इस वॉल का एरिया होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल गई कि जो नंबर ऑफ टाइल्स का एरिया है वो किसके इक्वल है? वॉल के एरिया के इक्वल। तो सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ टाइल्स क्या है? n, करेक्ट। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां पे हम वॉल का एरिया निकाल लें। ओके, सो लेंथ हमें कितनी दी हुई है वॉल की? लेंथ ऑफ वॉल दैट इज 1840 सेंटीमीटर, और विड्थ क्या दी हुई है हमें? दैट इज 750 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 1840 इंटू 750 दैट इज इक्वल टू 13840 square meter. So this is the area of wall. Now अब हमें चाहिए एरिया ऑफ n टाइल्स। तो सबसे पहले हम एक टाइल का एरिया निकाल लें। सो एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज इक्वल टू, अब हमें उसकी डायमेंशन पता है, दैट इज 20 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ n टाइल्स किसके इक्वल होगा? एक टाइल का एरिया ये है, n टाइल का एरिया क्या होगा? 500n। अब हमें क्या पता है? एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू एरिया ऑफ n टाइल, विच मीन्स 500n इज इक्वल टू 13840। तो यहां से n आ जाएगा। n क्या था? नंबर ऑफ टाइल्स। तो n किसके इक्वल आ गया? 13840 अपॉन 500। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो n हमारे पास आ जाएगा 2760 tiles. So these are the number of tile used on that wall. Next 24th question. The data given below shows the number of two-wheelers sold in different cities in the month of January. तो यहाँ पे cities है और यहाँ पे हमारे पास number of two-wheelers है। तो represent this data in the form of bar graph. तो bar graph draw करते हैं। तो सबसे पहले vertical line and horizontal line. ओके तो यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ टू व्हीलर्स। तो हमने सबसे पहले तो इसका देखना पड़ेगा कि हम यूनिट स्केल क्या चूज करें। तो यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास कैसी हैं? 600 से लेके 1200। तो क्यों ना हम 1 यूनिट 200 व्हीलर्स के इक्वल ले लें, करेक्ट। ओके तो हमने इस यूनिट सपोज कर लिया 200 व्हीलर्स। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 0 दैट इज 200, दैट 400, 600, 800, 1000, then 1200, 1400, 1600, 1800 and 2000। ओके तो इस तरफ हमने ले लिए नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, राइट। तो इस तरफ हम क्या ले लेंगे? सिटी। तो सबसे पहले हमारे पास सिटी है दैट इज दिल्ली एंड नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200। तो यहां पे इसकी हम 1200 के सामने इसकी बार ड्रॉ कर लेंगे एंड द सिटी इज दिल्ली। नेक्स्ट इज मुंबई 1800 व्हीलर्स। तो 1800 के सामने दैट इज मुंबई। नेक्स्ट वन इज कोलकाता दैट इज 700 व्हीलर्स। तो 700 कहां पे आएगा? 600 और 800 के इन बिटवीन। तो बिल्कुल इसके सामने दैट इज कोलकाता। नेक्स्ट इज बेंगलुरु 2000 व्हीलर्स। तो 2000 के सामने बिल्कुल दैट इज बेंगलुरु। एंड द लास्ट वन इज चंडीगढ़ दैट इज 600 व्हीलर। तो चंडीगढ़ यहां पे 600 के सामने दैट इज चंडीगढ़। So this is the bar graph for this given information. Next is 25th question. Jasmine has started business of making watches for children. First A part, she has designed an image of the advertisement, this image, to be published in the newspaper in a square of side 7 centimeter. To make it catchy, if she wants to enlarge this image by increasing each of its side twice the original length, then okay, if the cost of publishing is 16 per square meter, then find the total cost of publishing.
तो यहाँ पे उसने जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी है उसके लिए उसकी डायमेंशन के बारे में दिया हुआ है। जो स्क्वायर शेप में उसने एडवर्टाइजमेंट देनी है उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। अब वो चाहती है कि वो थोड़ा सा कैची बन जाए, उसकी जो व्यूइंग वो अच्छी हो, तो इसलिए वो उसकी इमेज का साइज 7 सेंटीमीटर सॉरी उसका ट्वाइस इंक्रीज करना चाहती है। किसका ट्वाइस? 7 सेंटीमीटर का। तो अब उस क्या पूछा गया है? टोटल कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो न्यूज़पेपर का कितना एरिया कवर कर रही है जो एडवर्टाइजमेंट है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा इस एडवर्टाइजमेंट का। अब पहले साइड क्या थी? साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी थी? 7 सेंटीमीटर। अब साइड क्या है? इसका ट्वाइस, मतलब साइड न्यू साइड क्या आ जाएगी? न्यू साइड ऑफ स्क्वायर। इसका ट्वाइस मतलब 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो अब हम पहले इसका देख लेते हैं उसने कितना एरिया कवर किया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इंटू साइड विच मीन्स 14 इंटू 14 दैट इज 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। करेक्ट। अब हमने क्या फाइंड करना था? इसकी कॉस्ट। अब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है? 16 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज ₹16। कॉस्ट ऑफ, अब हमें किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है? 196 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 196 विच इज इक्वल टू ₹3136 दैट इज 3136। तो मतलब उसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है पब्लिशिंग की? दिस। नेक्स्ट बी पार्ट। Jasmine wants to distribute printer t-shirt to her workers for publicity of her shop's logo, which would have a red color border around the whole image. Find the length of the border that she needs to make if she fixes the length of logo 26 centimeter and width is 17 centimeter. तो suppose ये उसका लोगो है और लोगो की हमें लेंथ कितनी दी हुई है? 26 सेंटीमीटर और विड्थ 17 सेंटीमीटर, और वो चाहती है उसके लोगो के अराउंड एक बॉर्डर हो जाए, रेड कलर का बॉर्डर। उसकी लेंथ फाइंड करनी है बॉर्डर की। अब बॉर्डर कहाँ उसकी? इस लोगो के अराउंड। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? इसका पेरीमीटर। अगर मुझे पेरीमीटर पता चल जाए तो मैं फाइंड कर लूंगी इसकी बॉर्डर का लेंथ क्या है। तो लेंथ मुझे पता है इस कितना है? 26 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 17 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका? that is 2 into length plus breadth, which is 2 into length plus breadth 26 plus 17, which is equal to 2 into 43. So 2 into 43 is 86 centimeter. So total length of border कितना आ जाएगा? 86 centimeter. So this is the end of the discussion of annual examination of TPS. Thank you.